Yes, hello everyone. Welcome back to students of class 12 Arts or Humanities. Today the topic of discussion will be on political science and the name of the chapter will start from intro, that is chapter 1. Chapter 1 is all about political science and then I'll give you an intro and then we'll proceed to chapter 2 without wasting much time. Okay, so students, first of all, this will be a book, okay, or any book you can refer which you have got through. Let's not rely too much on the books and let's deepen on the grounds of what political science actually is. Now first of all, as the name suggests, students, what do you mean by political science? When I say political science, science is basically something which relies much on applicability. It is not much theoretical, okay? It is not like history. Political science is all about politics. There is a different branch which is political theory as well. But science means something which relies much on applicability, where you can see the things happening in front of you, and things which happen in front of you in the sphere of politics, in the sphere of political domain, is totally political science. The paradigms are totally different, like history and political science. If you think that the subjects are same and everything relies on mugging up, students, you are in utter disappointment. Totally, history and political science are two bifurcations. They are different. Okay, so it is not just about mugging up and like understanding. Okay, so in political science you have to use your logic and understand, and you have to see the things which is happening. It is nothing imaginary. It is all either happened or is going to happen. Okay, so science means that, where applicability stresses much. So in chapter 1 you are going to study much about power and all those things. Chapter 2 is where actual thing starts. Okay, we'll start from Cold War era. I'll give you a brief intro before starting and then we'll go on to the chapter. Cold War basically means like ideological confrontation. There is a word, whenever you write an answer, write this word quote unquote with black pen, ideological confrontation, okay, or ideological hostility, anything you can write. So Cold War is what? It is an ideological confrontation, okay, confrontation. Ideological means what? Ideological means everything related in the ideologies, okay, ideologies. And confrontation means ladai, mudbher, dimagi ladai not with wars, ammunitions and weapons. It is the war which goes on in your mind. There is no actual war, but there is no peace also. Hence Cold War is also known as a war, or as a situation of no war and no peace. शांति भी नहीं, लड़ाई भी नहीं. Understood? बीच में रहना, इसको कहते हैं कोल्ड वॉर. I guess it is clear a bit. Understood? लड़ाई भी नहीं होगा और झगड़ा भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा. Understood? Nothing. So this kind of ideological confrontation goes between US and USSR. We'll discuss much on that. Now before understanding it, no, we'll start the explanation. बीच से नहीं start करते, चलो एकदम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा. Students, just go through this. सिट विद योर कॉपी पेन, जहां पे लगता है नोट करना है नोट करते जाएंगे साथ साथ में. अंडरस्टूड? कीप ऑन नोटिंग डाउन wherever you think it is necessary. Okay, now we know that the first world war had started from 1914 and it had lasted till 1918. Yes, 4 years. Clear? After that the first world war ended and then the second world war started in 1939 and ended in 1945. How did the second world war suddenly come to an end? ये और लंबा चलता. कैसे end हुआ? You know that USA had bombarded two important states of this thing, Japan, Hiroshima and Nagasaki on 1945. USA had basically like bombarded these two states and it was a nuclear attack. And what had happened was that Japan was taken 100 years back. Like Japan was totally plundered and devastated, and Japan was totally in no way it could prolong the war. So Japan had actually surrendered from it. Understood? And hence the war had abruptly come to an end. Clear? So with the end, तो second world war कैसे खत्म हुआ? When USA bombarded Hiroshima and Nagasaki on 1945, and in that case Japan was in no case like in the situation to prolong the war, and hence Japan had surrendered और war वहीं पे रुक जाता है. अच्छा, यहाँ से तमाम changes आते हैं. What happened after 1945? Okay, let me tell you. The first thing which happened was that main lead आपको पता है USA जीत जाता है. Understood? And the war stops. Okay. Now what happened? There was a conference. Okay. Now the name of the conference was Potsdam Conference.
पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस, लिखते जाएंगे कॉपी में साथ साथ। 1945 में पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस का खासियत क्या है? व्हाट वाज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस? व्हाट हैपेंड? जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, अमेरिका बिकेम विक्टोरियस, यूएसएसआर he also, like, they were very powerful countries. Okay, now what happened was that there was a meeting which was called. अब उस मीटिंग में बुला करके क्या देखना था कि वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया है ना, किसके पास कितना पावर है, कौन से देश कौन से पोजीशन में है, तो ये देखने के लिए आयोजन एक मीटिंग किया गया था। एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस मीटिंग? मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला दैट इट वाज सीन दैट जापान वाज टोटली प्लंडर्ड। उसका कोई सीन ही नहीं है, वो शक्तिशाली देश और नहीं रहा, वो खत्म हो गया। मेन लीड में दो जन आ गए। मीटिंग में पता चला दैट दो कंट्रीज के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पावर है। एंड व्हाट वर द टू कंट्रीज? द टू कंट्रीज, वन वाज यूएसए, okay, or the US, okay, anything, the United States of America, and other one was USSR. What is USSR? Union of Soviet Socialist Republic. Kindly note it down. Union, UNION, Union of Soviet, SOVIET, Soviet Socialist, SOCIALIST, Socialist Republic. Okay, इसका एक, ये दो कंट्रीज के पास was totally, the world was like divided, you can say, between these two powers. दुनिया का सबसे ज्यादा पावर, वेल्थ, शक्ति, सब कुछ इनके पास ज्यादा मिला। This was the outcome which was seen in Potsdam Conference. समझ में आया? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों को खुल के बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा, क्लियर है इतना? I guess I not any problem. If you have any problem, please go back, rewind the video and see it from there, so that the things become more clear to you. ठीक है, यूएसए यूएसएसआर के पास सबसे ज्यादा पावर मिला है। अच्छा, अब क्या होता है? अब ध्यान से सुनेंगे। कोल्ड वॉर कहां से स्टार्ट होता है? अभी तक कोल्ड वॉर नहीं था, अब कोल्ड वॉर स्टार्ट होगा पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा, रिलेशन बताते हैं थोड़ा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे। क्लास में दो बच्चे हैं एंड देयर आर टू स्टूडेंट्स, ओके, दोज आर लाइक टॉपर ऑफ द क्लास, ओके, वन स्टूडेंट ब्रिंग्स 95, अदर ब्रिंग्स 95.5, लाइक कांटे की टक्कर, both are equally intelligent. Okay, now when these two students are very intelligent, what kind of relation do these two students have in the class? What kind of relation do these students have in the class? Are they very good friends? Like they'll eat together, like walk together and sit together, talk together. Will they have this kind of relationship? No, they don't have that kind of friendly relationship. Okay, if they are not friends, are they enemies? Do they fight always, like cat fight करते रहते हैं? No, मुंह पे लड़ाई भी नहीं करते हैं। उनका जितना भी कंपटीशन है दिमाग में रहता है, आइडियोलॉजी में चलता है। इस बार मैं फर्स्ट आया, नेक्स्ट टाइम तेरे को बीट करूंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, ऐसा लड़ाई रहता है। ना दोस्त ना दुश्मन, पढ़ाई को लेकर के लड़ाई। समझ में आया? आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, दिमाग में एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं और सामने में कुछ नहीं दिखा रहे। समझ में आया? बात समझ में आया? सो दिस इज द मेन थिंग विच हैपेंड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दोनों क्लास के, मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉपर्स थे। इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है। लड़ते थे क्या? डिड दे फाइट? नो, दे डिड नॉट फाइट। ओके, वे दे फ्रेंड्स? नो, दे वर नॉट फ्रेंड्स। सो व्हाट वे दे फाइटिंग फॉर? देयर लाइक एवरीथिंग वाज देयर इन द माइंड ओनली। माइंड गेम चलता था। क्या माइंड गेम? कब कौन किसको बीट करके वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सुपर पावर बन जाएगा, हेजीमन बन जाएगा। देयर इज अ वर्ड व्हिच सेज हेजीमन। ओके, hegemony चलेगा या फिर hegemon, this is a political term, you can write it down. Okay, always use this term so that to make your answers more beneficial and more attractive. Okay, like authoritative, bureaucracy, ठीक है, और ये hegemony, ठीक है, US dominance, world politics, this kind of contemporary world politics, ये सब आंसर में ब्लैक ब्लैक से लिखेंगे, आपका आंसर का क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अंधाधुन लिखना सबको आता है और मार्क्स भी नहीं मिलता है। So you have to use these things and then you have to make your answers more different from others. Clear? So now there was US hegemony. Hegemony means what? Hegemony means extreme dominance. Extreme dominance. किसका extreme dominance? By any one superpower. ठीक है? अच्छा, सो सभी हेजीमन बनना चाहते थे। ये इसको हराना चाहता था और सुपर पावर बनना चाहता था वर्ल्ड का, ये इसको हराना चाहता था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया? एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर, ठंडा लड़ाई।
ठीक है. So there was a Cold War which started between USA, United States of America, and USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Clear? It started just after Potsdam Conference, जब इनका खुलासा हुआ था 1945 में. ठीक है, और ये बहुत दिन तक चला. ये ठंडा लड़ाई जो था ये एंड खत्म हुआ कब आपका, ये पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ आपका 1991 में. क्यों खत्म हुआ वो दूसरा है टॉपिक, उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. ठीक है, मेनी थिंग. Gorbachev एक then Gorbachev was a leader. He brought some rules like glasnost and perestroika. Many rules were there which brought understood and suddenly what happens, slowly USSR disintegrate हो गया और USA ऑटोमेटिकली बिना लड़ाई का भी वर्ल्ड पावर आज बन गया. आज सुपर पावर कौन है बोलने से क्या बोलोगे, कंट्री पूरे वर्ल्ड का USA है. कैसे बना वो बाद के टॉपिक्स में देखेंगे. आई गेस इसी चैप्टर के लास्ट में है, वो डिस्कस करेंगे बाद में. यहाँ तक क्लियर है क्या, हेजीमनी क्या है, पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था, कोल्ड वॉर क्या है. अच्छा बच्चे कोल्ड वॉर का एक लिख लो, व्हाट इज कोल्ड वॉर अगर क्वेश्चन आता है. सो आप ये लिखेंगे, कोल्ड वॉर रेफर्स टू द इडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, कोट अनकोट इडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स USA and USSR, which had started just after the Second World War in 1945 and ended in 1991 with the disintegration of the Soviet Union. It is a situation, नीचे लिखेंगे second point, it is a situation of quote unquote no war, no peace. लड़ाई भी नहीं, शांति भी नहीं. ठीक है, so that is Cold War. I guess इतना अच्छे से क्लियर है. I guess no problem. ओके, बुक रेफर नहीं करेंगे, बुक से रीडिंग नहीं करेंगे, स्टोरी जैसा समझेंगे, दिमाग में स्टोर करके रखना है. अंडरस्टूड. एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 5 बार देखो और समझो, क्योंकि ये बिना समझे 12th का एग्जाम में नहीं बैठने सकते आप. You don't have any like right to go and sit for the exams if you don't know anything about Cold War and like contemporary world politics. Okay, so I guess this much is clear. Further moving on, let's talk something about okay, so I guess if you now take the reference of the book, you can see that we have mostly completed causes clear कर लिया. ठीक है, अभी दो कंट्रीज आ गए थे कोल्ड वॉर के डोमिनियन में, एक था USA, दूसरा है USSR. बात समझ में आया, USA USSR के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. कब से, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945. ओके, दोनों के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि कोल्ड वॉर में तो ये दोनों ही है. अच्छा, USA was known as the Western Bloc. Western Bloc, BLOC ही है, K नहीं होता है. Understood? Western Bloc ही बोलते थे उसे, BLOC. And this was known as Eastern Bloc. Eastern Bloc. ठीक है. ओके, USA was abided. USA ने एक पैक्ट साइन किया था जिसका नाम था NATO. साइन किया था 1949 में. ओके, NATO का फुल फॉर्म लिख लेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब साइन किया था, 1949 में. कितने स्टेट्स थे, 12 स्टेट्स थे इसके अंदर. ठीक है. नाउ USSR had signed Warsaw Pact. Warsaw Pact. Okay, what is Warsaw Pact? He has signed it in 1955. Clear? Warsaw Pact साइन किया था USSR के कंट्रीज ने, और इसमें कितने स्टेट्स थे, इसमें 15 स्टेट्स थे. ये मत सोचना है इसमें 12 है, इसमें 15 है, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है, नहीं, इक्वली पावरफुल थे. यू कैन नॉट से दैट ये ज़्यादा ये कम, नथिंग, इक्वली पावरफुल. एक दूसरे के ऊपर अटैक करेगा, देयर वुड हैव मीन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. अच्छा, एक किस्सा भी याद आता है इससे. देयर वॉज अ लाइक फॉर वन टाइम व्हाट हैपेंड, US एंड USSR दे वर लाइक फ्रंट टू फ्रंट ईच अदर. एक वॉर होने वाला सिचुएशन था. ठीक है, उसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है. अंडरस्टूड? 1961 में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1961 में हुआ था. 1962 में चाइनीज इन्वेजन हुआ था इंडिया में, और 1961 में आपका वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था. ठीक है, उसमें खैर कभी बाद में बात करेंगे. तब आपका USA का प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी था, USSR में आपका निकिता क्रुश्चेव, एंड क्यूबा स्मॉल आइलैंड, वहाँ पे फिडेल कैस्ट्रो, एंड देयर वाज अ लाइक वॉर लाइक सिचुएशन. आई टेल यू दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई गेस इफ इट इज देयर इन द सिलेबस आई विल श्योरली डिस्कस, एंड इफ इट इज नॉट देन विल इवेट इट. ओके, सो USA was known as Western Bloc, USSR is known as Eastern Bloc. NATO साइन किया था, उसने एक ट्रीटी साइन किया था 1949 में, जिसमें 12 स्टेट्स थे.
यूएसएसआर ने भी एक साइन किया था ट्रीटी, वार्सो पैक्ट, उसमें 15 स्टेट्स थे, 1955 में साइन हुआ था। ठीक है, अब दोनों कंट्री के आइडियोलॉजीज क्या क्या थे ध्यान से देखेंगे। व्हाट वर द टू आइडियोलॉजीज बिटवीन द टू कंट्रीज? ठीक है, हु फॉलोड व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, कौन क्या फॉलो करता था, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यूएसएसआर यूज्ड टू फॉलो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, okay, whereas USSR followed the ideology of this thing, your socialism and communism. Each word is very very important and you have to incorporate these things with the answer if you want good marks. If you don't mark, that is your wish, but अगर marks चाहिए बोर्ड में, words लिखने हैं कौन क्या follow करता है। Okay, so USA used to follow liberal democracy. Democracy, you know what is democracy? It is a form of government where rulers are elected by the people themselves. Okay, you know that. And India is a sovereign, socialist, secular, republic and democratic country. Okay, so democracy मतलब पता है, जहाँ पे रूलर्स जो है वो कौन चुन के बिठाता है, ठीक है, खुद पीपल वोट दे के चुनते हैं, सिर्फ डेमोक्रेसी बोलते हैं। नाउ लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल मीन्स लूज, नो रेस्ट्रिक्शंस। ओके, यूएसए में, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी विद रेस्ट्रिक्शंस। यूएसए में लिबरल डेमोक्रेसी है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस कंपैरेटिवली लेस, मतलब और मजा है डेमोक्रेसी को जीने में। ठीक है, यूएसए में है, ऐसा है। और कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म मीन्स मार्केट इकोनॉमी वेयर योर मार्केट इज रन बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। ठीक है, ये कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो यूएसए में इफ यू हैव मनी, इफ यू गो एंड वेंचर इनटू द बिजनेस, यू विल गेट मोर रिचर, बट इफ यू आर पुअर माय डियर, देन यू विल हैव टू बी मोर पुअरर। सो दैट इज द आइडियोलॉजीज ऑफ यूएसए। आई गेस दोनों क्लियर है, आंसर्स में डालेंगे। यूएसएसआर में क्या है? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म क्या बताता है? सोशलिज्म लिखेंगे, सोशलिज्म मीन्स वेयर गवर्नमेंट इज द सोल लाइक इंटरप्रेटर ऑफ एवरीथिंग, गवर्नमेंट इज द लाइक हेड ऑफ एवरीथिंग। व्हाट ही डज इज दैट ही लाइक डिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ, ही डिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इक्वली इन द सोसाइटी, इक्वली इन द सोसाइटी। ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ में आता है, सो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम एंड वेल्थ इक्वल इन द सोसाइटी। क्या करता है? सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है सोशलिज्म वाले कंट्री में। ठीक है, कोई भी प्राइवेट लैंड बोल के नहीं रहता है, सब कुछ सरकार का है। आप सरकार के देश में रहते हैं, लाइक इन चाइना there is no property like private property, everywhere government claims its own self. Okay, so what happens? That is socialism. Why the government does so? Because the government is of the intention to create what? To create an egalitarian society. लिख लेंगे कॉपी में, egalitarian society. Egalitarian society माना a society where everything is equal and egalitarian, समान सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जहाँ पे no one is rich and no one is poor, क्योंकि सरकार सेम सैलरी देता है सबको, सेम सब कुछ रखना चाहता है। What is communism, dear? Communism means existence of only one party, that is the Communist Party. Existence of only one party, that is the Communist Party. There will be no other party except Communist Party. You know what happened in China? If Chinese government they come to know that you are entangled in creating any extra party other than the Communist Party, they can maim you, murder you and plunder you out. And it is their right according to the party rules and regulations. It is a crime to create or indulge in creating any kind of party except Communist Party inside a communist government or a communist regime. Is it clear? So USSR strictly follows communism. So now if I ask students, USA है, USSR है, कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पता होगा। अगर मैं बोलूँ दोनों कंट्री में किस में रहना चाहोगे? If I ask you that which country do you want to stay in, USA or USSR, what would you say? You surely would like to stay in USA because the situations are quite better than compared to USA. यहाँ पे प्रेशराइज होता है, गवर्नमेंट इज वेरी अथॉरिटेटिव, गवर्नमेंट इज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, ओके, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आउट देयर इन यूएसएसआर, बट इन यूएसए डेमोक्रेसी भी नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी, country is very rich, no interference of the government, understood? Everything is given to the government, everything is provided in the market itself, so rich gets richer and poor gets poorer. Interesting? So USA and USSR, this is the entire picture. इसको दिमाग में छाप लेना ठीक से, and then so that you can write your answers very properly. Understood? So this was your entire कहानी of USA and USSR. ठीक है, सो कोल्ड वॉर हो गया, यूएसए यूएसएसआर के बारे में पिक्चर बता दिया, ओके।
अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जस्ट लेट मी गिव इट अ लुक इन द बुक. इफ इट इज देयर आई विल श्योरली डिस्कस इट. इफ इट इज नॉट देयर विल गो ऑन फर्दर टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. ओके स्टूडेंट्स, सो इतना तक क्लियर है आई गेस. अभी स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आपका है अच्छा, यूएसए यूएसएसआर के बीच में रिलेशन कैसा है. अच्छा, मैंने क्या बताया, यूएसए यूएसएसआर के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा. फ्रेंड्स नो, एनिमीज येस. वेयर एनिमी, इन द दिमाग. क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन. बात समझ में आया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में चल रहा है भाई, चल रहा है अच्छे से वॉर. अच्छा, when the world power is divided between two heads, no students, it is known as bipolarity. There is a word which is known as bipolarity. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what is bipolarity, तो क्या लिखेंगे. bipolarity क्या है. bi means दो, polarity means division of power. दो पोल्स में डिवाइडेड है. ठीक है, bipolarity, power is divided between two heads. कब हुआ था ऐसा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब पावर दो हिस्सों में बट गया था. ठीक है, बट ये कितने दिन तक चला. 1945 में तो स्टार्ट हुआ था. कितने दिन तक चला, ये चला 1991 तक. ठीक है, 1991 में क्या हो गया, यूएसएसआर हार गया, यूएसए अकेला रह गया, तो यूएसए वर्ल्ड का क्या बन गया, हेजीमनी बन गया. अंडरस्टूड, यूएसए बिकेम द हेजीमनी और यूएसए बिकेम द सुपर पावर इन 1991. एज इट इज नाउ ओनली वन पावर, इट इज नोन एज यूनिपोलर. अंडरस्टूड, यूनिपोलैरिटी. और यूनि मीन्स वन, पोलर मीन्स एक जगह में पावर कंसंट्रेशन. हियर पावर इज कंसंट्रेटेड बिटवीन टू हैंड्स, यूएसए यूएसएसआर. अंडरस्टूड, सो बाइपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ पावर कंसंट्रेटेड ओनली इन वन हैंड. ऐसा कब हो गया, 1991 में हो गया. अभी तक भी ऐसा है क्या, हाँ अभी तक भी ऐसा है. यूएसए ही सुपर पावर है. अंडरस्टूड, तो आई गेस इतना क्लियर है. अच्छा, आगे देखते हैं. अभी बाइपोलैरिटी यूनिपोलैरिटी हो गया. अभी अच्छा, नाम के बारे में डिस्कस करते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, an integral part coming to नाम. नाम क्या है, प्लीज अगर आप थक गए हैं पॉज करें वीडियो, पानी पी के आइए, क्योंकि ये कंसेंट, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड, एक बार स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक देखना है इसको. ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ पॉज, गो ड्रिंक एंड वाटर, सिट अगेन विद योर बुक्स एंड कॉपीज, बट आई वांट फुल कंसंट्रेशन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड नाम. क्लियर, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज नाम. नाम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट. ओके, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी बोलते हैं कोई. कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर. अंडरस्टूड, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स आर देयर इन नाम. नाम हैज 5 फाउंडिंग और फाउंडर मेंबर्स. ओके, 5 कंट्रीज लोग ने. अच्छा, क्या हुआ था मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा, इससे पहले भी ये चीज़ बता दे रहा हूँ, यूएसए और यूएसएसआर ना. अच्छा, यूएसए यूएसएसआर के बीच में नाम को आना क्यों जरूरी था, सुन लेते हैं थोड़ा. देखो क्या होता है ना, द वर्ल्ड वॉज गेटिंग डिवाइडेड इंटू 2 पावर्स. ठीक है, अब कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ना 2 ही पावर सबसे ज़्यादा था. एक था यूएसए के पास पावर और यूएसएसआर के पास पावर. ठीक है, तो सारा कंट्रीज ना, कोई या तो यूएसए के पास जा रहा था और कोई यूएसएसआर के पास जा रहा था. ठीक है, मतलब एक टाइप ऑफ लिंक बनाना चाहता था, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स हैं और सुपर पावर्स का कनेक्शन रखना अच्छा है. आपको चंदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, एनीथिंग यू कैन गेट. अंडरस्टूड, एक प्रोटेक्शन मिलेगा. अंडरस्टूड, सो एवरीबडी, द वर्ल्ड वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अंडरस्टूड, सो slowly what happened was that people started seeing these things as super powers. Now हमारा आइडियोलॉजी डिफरेंट था. इंडिया ऐसा नहीं सोचता था किसी का चमचागिरी नहीं करना है, यूएसए यूएसएसआर के साथ नहीं जाना है. ठीक है, ये एक सिचुएशन में बताना चाहता हूँ. सी लाइक व्हाट हैपेंस इन कॉलेज, नो, देयर आर 2 गुंडाज आर देयर इन द कॉलेज. अंडरस्टूड, 2 दादाज आर देयर इन द कॉलेज. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट द एंटायर क्लास और द एंटायर कॉलेज गेट्स डिवाइडेड बिटवीन 2 दादाज. अंडरस्टूड, या तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे रहेंगे जो इसको फेवर करेंगे, इस पार्टी को, और कोई दूसरा होगा जो उस पार्टी को फेवर करता है. ठीक है, अच्छा, इतने में नाम आ जाता है. ठीक है, जब देखा रहा था कि वर्ल्ड बट रहा था 2 हिस्सों में, तो नाम आ जाता है अपना शांति का झंडा लेके. ठीक है, सो नाम, द मेन इंटेंशन ऑफ नाम वाज टू प्रमोट पीस, टू प्रमोट पीस, शांति एंड ट्रैंक्विलिटी. ठीक है, ये बता सकते हैं. और बता सकते हैं दैट नाम क्या चाहता था, पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता था. ठीक है, तो कॉलेज क्या हो रहा था, 2 हिस्सों में बट रहा था, या एक इसके तरफ एक उसके तरफ. इतने में शांति का झंडा लेके नाम आता है. नाम बोलता है नहीं, हम ना ही आपके साथ जाएंगे ना ही आपके साथ जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे आपके साथ, क्योंकि आपस में एक ना एक दिन तो आप लोग को लड़ना ही है भाई, और हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए. तो हमारे ग्रुप में कौन कौन आएंगे बोल करके इसने क्या किया, एक नया ग्रुप बना लिया. और ग्रुप का लोगो क्या रखा, प्रोमोट पीस एंड स्टेबिलिटी. हम नॉन अलाइनमेंट वाले हैं, जिसको शांति पसंद है वो हमारे ग्रुप में आ जाए,
और जिसको लड़ाई करना है, चमचागिरी करना है, वो इनके साथ चले जाए. So this was, are you understanding the concept? With that concept what happened, naam started coming out. Okay, interesting. So this was all about naam. Naam came with the main motto. अगर मोटिव पूछेगा क्या है, promote peace and stability लिखना ही है. ठीक है, ये वॉर नहीं चाहता था. Understood? अच्छा, फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन कर लेंगे. फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम, 5 कंट्रीज वेयर देयर वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम. सबसे पहले द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंट्री वाज दैट इंडिया. इंडिया जवाहरलाल नेहरू. अंडरस्टूड? इजिप्ट जामल अब्देल नसर. सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया. घाना क्वामे नक्रुमा एंड जोसेफ ब्रोज टिटो फ्रॉम यूगोस्लाविया. अंडरस्टूड? सो हु वर दोस? नंबर 1 वाज इंडिया जवाहरलाल नेहरू. Jawaharlal Nehru from India. Understood? Indian first Prime Minister. Number 2 was Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser, Nasser. Jamal Abdel Nasser from Egypt. And then Josip Broz Tito from Yugoslavia. Please copy it down. Number 4, Sukarno from Indonesia. Sukarno from Indonesia. And number 5, Kwame Nkrumah from KWAME. Kwame Nkrumah from Ghana. My handwriting is very beautiful, so kindly bear with it and write it down. Okay. Once again I am repeating. Jawaharlal Nehru from India. Jamal Abdel Nasser from Egypt. Josip Broz Tito from Yugoslavia. सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड क्वामे नक्रुमा फ्रॉम घाना. ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज लोग ने मिलकर एक स्तंभ गाड़ा, या फिर बोल सकते हैं क्या कहते हैं उसे, फाउंडेशन बनाया. ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट दे क्रिएटेड नाम. इन्होंने नाम का स्थापना किया, लिख लिया. नाउ दे व्हाट दे डिड वाज दैट दे हैड क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ नाम, और फिर नाम बन गया बहुत अच्छे से. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, दैट नाम का पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो क्या बोलेंगे? Where was the first NAM summit held? The first NAM summit was held in 1961 in Belgrade. Where is Belgrade? In Yugoslavia. ओके, तो इन 5 कंट्रीज ने मिलकर के अपना पहला मीटिंग बेलग्रेड में रखा 1961 में. एकदम कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट है 1961. अंडरस्टूड? उसी टाइम पे नाम ने पीस का प्रमोट किया, एंड नाम हैड लाइक व्हाट यू से दैट ही हैज created the first NAM summit in Belgrade in Yugoslavia and it was an utter success. कैसे पता चला सक्सेस है? क्योंकि 2006 में हवाना में समिट हुआ था और उसमें 116 कंट्रीज को देखा गया. तो 5 कंट्री ने स्टार्ट किया. ठीक है, और पहले समिट में 25 कंट्रीज पहुंचे. ठीक है, और 25 कंट्री से बढ़कर के 116 कंट्रीज नाम के खाते में दर्ज हो गए. कब? 2006 में देखा गया. ठीक है, तो ये प्रूव होता है दैट नाम वाज अटरली अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट. ठीक है, तो एंड इंडिया गॉट द मोस्ट प्रोमिनेंट चांस. आप सोच सकते कॉलोनियल कंट्री है, इसको हाल ही में आज़ादी मिला, गरीब. अंडरस्टूड? कितना बेइज्जती करना पड़ता था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोई स्टैंड नहीं मिलता था इंडिया को, बट इंडिया ने नाम का प्लेटफॉर्म लेकर के इंडिया टुक इंडियाज फेम एट अ पीक पॉइंट. एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग इंडिया एज अ पीसफुल एंड अ पीस प्रमोटिंग कंट्री जो लड़ाई झगड़े में नहीं जाता है. इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत आगे चला गया. सो नाम कैन यू से अ सिग्निफिकेंट यू टर्न इन द पोजिशन और इन द स्टेटस विच इंडिया इज हैविंग टुडे. नाम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल always, and it will be always written in golden letters that India was taken ahead because of NAM summit only. Understood? These things you have to know very nicely. Okay, so now what happened is that 1961 Belgrade Yugoslavia, I guess लिख लिया, ये clear है. Now ये था तुम्हारा नाम का कहानी. अच्छा, तो फाउंडिंग मेंबर्स लिख लिया, नाम का प्रोमोट क्या था एंड ऑल, नाम न्यूट्रलिटी, नाम ये सब क्या क्या है तो बाद में डिस्कस कर लेंगे ये चीज़, आई गेस. अच्छा, लास्ट चीज़ बता देते हैं. 1991 में डिसइंटीग्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा. ये सिर्फ एक ओवरव्यू, अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है आप प्लीज बुक से पढ़े लाइन बाय लाइन, या फिर जब स्कूल खुलेगा तो ऑलवेज विल डू विद लाइन बाय लाइन, बट नाउ दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. काइंडली टेक अ ग्रास्प और अ जिस्ट ऑफ द मेन बेसिक्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. ओके, सो लास्ट टॉपिक इज 1991 में क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया. किसका डिसइंटीग्रेशन हो गया? यूएसएसआर का संघ जो है इट फ्रैगमेंटेड. अंडरस्टूड? और डिसइंटीग्रेशन का नाम देते हैं हम इसे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. ठीक है, द यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया अचानक?
व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन? इतना पावरफुल कंट्री आप सोच सकते हैं जो कि इतना पावरफुल था एंड कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया भाई? तो रीजंस बहुत हैं, कई हैं। आज भी पॉलिटिक्स बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो रीज़न, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो अलग अलग रीज़न प्रूव करते कि शायद से ये हुआ होगा वो, बट मेन रीजंस एक था, कई थे, चलो एक बता देते हैं। सबसे पहले तो था आपका गोर्बाचेव, एक लीडर आया था, ठीक है। सो गोर्बाचेव, he had come and he had bought two policies. Understood? What were the two policies? One was glasnost, other one was perestroika. Okay, glasnost means openness and perestroika means restructuring. Glasnost and restructuring. ओके अच्छा क्या हुआ ना, गोर्बाचेव आ गया अभी इतने में, ठीक है। अब गोर्बाचेव आकर क्या बोलता है, दैट आई विल गिव यू ओपननेस, मैं दो पॉलिसीज लाया हूँ, एक है ओपननेस, एक है रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो गोर्बाचेव आकर के जब ये बोलता है दैट मैं सबको आज़ादी दूंगा और मैं सबको लाइक ओपननेस दूंगा, ओपननेस मीन्स people will have the freedom of speech and expression, people can voice their opinions, people can come with their problems to the government and government will be there to solve the problems, that is known as openness, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स सब कुछ रिस्ट्रक्चर कर देंगे, फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जितने भी हैं, वी विल like crash those things and we'll come up with a new formulation of new laws and things to govern our country. Restructuring, फिर से restructure करेंगे। सबको पसंद आता है, यूएसएसआर के वासियों को सबको पसंद आता है, क्यों? क्योंकि इतने दिन से हम क्या कर रहे थे, like we were facing the problem for the government, okay, what we were doing is that the government was very authoritative था, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिव था, बोलने नहीं दिया जाता था, सप्रेस किया जाता था, पार्टी के दायरे के अंदर रहना था, बहुत पाबंदियां थे। इतने में कोई आता है और बोलता है मैं आपको ओपननेस दूंगा, फ्रीडम दूंगा, आप उसी को जाकर के वोट देंगे, उसी को पसंद करेंगे। तो ये बंदा ने वही चीज किया एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट हिज पॉलिसीज, अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिसीज व्हाट हैपेंड, ही स्टार्टेड गिविंग ओपननेस। उसने चलो ओपननेस कर दिया, चलो हमारी मांगे पूरी करो का नारा लग रहा था, तो उसने बोला ठीक है आपकी मांगे पूरी किया जाएगा, ओपननेस आपको दे दिया जाएगा। जब ओपननेस दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया, व्हाट डिड द पीपल द डिमांड फर्स्ट? मुंह खोलते उन लोग ने क्या मांगा? आजादी मांगा कि हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना है, वी वांट आवर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री। Understood? So what happened? People started asking for openness and they got openness. And what did they ask for? They asked for independence. They asked for like their own country. They did not want it to stay under the authoritative or bureaucratic government under the dominion of USSR. So they wanted openness. So freedom मिला, तो 15 कंट्री में से एक कंट्री ने फ्रीडम मिला, वो लेकर के बाहर चला जाके अपना कंट्री बना लिया उसने। एक का देखा देखी बोला उसको दिया मुझे भी दो, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, करते करते कई कंट्रीज चले गए और यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, धीरे धीरे वो टूटने लगा, ठीक है। और बाद में ऐसा पता चला 1991 में गोर्बाचेव रिजाइंड हिज पोजीशन एंड ही क्लेम दैट टुडे यूएसएसआर इज डिसइंटीग्रेटेड एंड आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोस्ट ऑफ अ लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। हेंस ये ऐलान हो जाता है 1991 को कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है। और अगर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टॉप में कौन आ जाता है? His enemy, that is USSR, becomes a superpower. USA hegemony बन जाता है। आज दिन तक हमें पता चलता है that USA is the hegemon power in the world politics। बात समझ में आया? धन्यवाद।